Hi everyone, Nishant is back in another video of Avid Education Academy. So far we have covered some of the important topics by our learned teachers. In future we'll be incorporating more teachers. If you are interested, do join us. The email ID is given in the description. And if you haven't subscribed yet, please do subscribe. Press the bell icon to get the notification first on your phone. So let's get started. Hi everyone, I'm back with my new topic and this is a different topic, elements, compounds and mixtures. We have already studied in our lower classes that matter has been divided into three kinds, that is liquid, solid, liquid, gases. One fourth state of matter has also been discovered, that is known as the plasma, but I'll make that video in some after some time. Okay, so let's get started with this elements, compounds and mixture. This is your matter and it has been divided into two types, pure substances and mixture. Pure substances जो डिवाइड हुआ है वो है element and compound. देखिए, you can just see in this chemistry language we can say that matter has been divided into two types, pure substance and impure substances. Impure substance is the mixture. Mixture मतलब कुछ भी. Just like your खिचड़ी that you don't like and even I don't like. So pure substances are further divided into element and compound. See, you can see in this picture in element we have same kind of atoms. The smallest particle of an element is known as atoms. Okay, that also I'll make a video in the after some time. So first let me tell you about this element. See, this element are having the same kind of atoms, same kind of particles we can say. And in compounds you can see the same structures are there, but you can see the different structures are there but in a fixed proportion. यहाँ पे एक तरह के पार्टिकल्स नहीं है. You can see red and blue particles are there. तो लेकिन ये fixed proportion में है. ये आपका है compound. Here you can see mixture is further divided into homogeneous mixture and heterogeneous mixture. That first of all let us talk about this element. See, till now scientists have discovered 118 elements and there are many more to be discovered. ये यहीं तक कहानी समाप्त नहीं है. इतने सारे एलिमेंट्स हैं जिनको तो अभी तक खोजा तक नहीं गया है, लेकिन अभी तक 118 एलिमेंट्स हैं जो कि डिस्कवर कर लिए गए. सो लाइक दिस आर्गन इज देयर, ऑक्सीजन एटम्स आर देयर. ये पेयरिंग जो है मैं आपको बाद में समझाऊंगी. एंड बट दिस आर द एग्जांपल्स कि एलिमेंट में आप देख सकते हैं दिस आर द सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स. एक जो भी एलिमेंट होती है उसमें सेम तरह के पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन कंपाउंड्स में आप देखिए एक बॉन्डिंग होती है जो कि दो या दो से अधिक, दो या दो से ज्यादा, टू और मोर देन टू एलिमेंट्स जॉइन टुगेदर विद अ बॉन्ड. और ये एक मतलब है केमिकल एक्टिविटी होती है जिनको इनको हम अलग नहीं कर सकते हैं. यू कैन सी दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड में आप देख सकते हैं वन एलिमेंट ऑफ कार्बन जो कि कार्बनिक एलिमेंट है. कार्बन जब एलिमेंट है तो उसमें हर तरह से जितने भी पार्टिकल्स हैं, जितने भी एटम्स हैं वो सेम है. लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड में आप देख सकते हैं कि वन कार्बन एटम एंड टू ऑक्सीजन एटम्स आते हैं. तो दो ऑक्सीजन एटम जो बॉन्डिंग करके कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, एक फिक्स प्रोपोर्शन है. ऐसा नहीं कि ये वाले कार्बन डाइऑक्साइड में तीन आपके ऑक्सीजन ज्वाइन हो गए, यहाँ पे चार हो गए, वरना वो नाराज हो जाएगा या फिर ये नाराज हो जाएगा. सो इट इज नॉट लाइक. कार्बन के जो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो आपको एक फिक्स प्रोपोर्शन में मिलेंगे. सो दिस आर द कंपाउंड एंड दिस आर द प्योर पार्ट्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस ऑफ मैटर. Mixtures, now you can see we are surrounded by air everywhere. Air is a mixture. You can see the gases of nitrogen, oxygen, carbon dioxide, carbon monoxide, sulfur dioxide. There are a lot of gases, lot of dust particles, germs, everything is there. जो भी व्हीकल से निकल रहा है, जो भी कहीं से भी बर्निंग से निकल रही है गैसेस हैं, जो एटमॉस्फेयर में जो हैं गैसेस, वो सब मिलके एक मिक्सचर बना देती है जिसमें हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये ज्यादा ये कम. ये देखिए यहाँ पे यू कैन सी आर्गन भी है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी है, आपका नाइट्रोजन भी है, एवरीथिंग
आपकी जो कि मम्मी आपकी कुकर में बना के बस आपको दे देती है और जो कि आपको पसंद नहीं होती है। सी एलिमेंट्स वर्सेस कंपाउंड वर्सेस मिक्सचर। एलिमेंट सिंगल एटम और ए ग्रुप ऑफ सेम एटम्स, एक ही बिरादरी के, जैसे एक ही बिरादरी के लोग होते हैं, तो ये क्या है, देखो आप यू कैन सी सेम काइंड ऑफ एटम्स या उनका ग्रुप जो है सेम काइंड ऑफ एटम्स का, उससे हम बोलेंगे एलिमेंट। जस्ट लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, गोल्ड, सिल्वर, ये सब आपके किस कैटेगरी में आते हैं, एलिमेंट की कैटेगरी में आते हैं। दे आर ऑफ सेम काइंड, सब एक ही बिरादरी के, दिस इज द एलिमेंट। नाउ कंपाउंड, before starting compound, let me have some H2O molecules. So H2O, so this is H2O molecules, this is a compound water. वाटर जो है वो आपका कंपाउंड है, क्योंकि वो किससे बना है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, H2O. H2O means two hydrogen atoms combined with one oxygen atom, जिससे वो वाटर बनाता है। और इसको हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में अलग नहीं कर सकते, ओके, ये केमिकल रिएक्शंस है, इसको हम फिजिकली अलग नहीं कर सकते हैं। वरना क्या होता है कि अगर ऑक्सीजन की कमी होती है तो हम उस H2O में से O निकाल के हम लोग ले लिए होते और H2O को छोड़ दिए होते, सो इट इज नॉट पॉसिबल। सो ये है हमारा कंपाउंड। तो कंपाउंड में क्या है, आपका ये जो है केमिकली बॉन्डेड होते हैं और एक फिक्स रेशियो में, कि H2O मॉलिक्यूल्स में दो हाइड्रोजन एटम मिलके ही एक ऑक्सीजन एटम से बॉन्डिंग करेंगे, देन ओनली द कंपाउंड विल बी फॉर्म। जस्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ कंपाउंड। नाउ मिक्सचर को कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। आप देखो, आप जो अभी वैसे भी मुझे चाय पीने की बहुत इच्छा हो रही है, तो I will ask them to please bring one cup of tea. तो ये कप ऑफ टी क्या है, आपका मिक्सचर। तो उसमें चीनी भी डाल दी, आपने टी लीव्स भी डाल दी, जिंजर जूस भी डाल दिया, whatever the things are there, they are in any proportion. So this is the mixture. So two or more compounds make mixtures in any ratio. इनका कोई फिक्स रेशियो नहीं होता है, ये किसी भी रेशियो में मिक्स होते हैं फिजिकली। So this is known as the mixtures. Now we can see some of this element and compound. See, element contains only one kind of atom. Elements में किसी भी तरह की मिलावट नहीं होती है, तो ये क्या है, it contains only one kind of atom. Listed on the periodic table that I will show you the periodic table in my later videos, but now we are just telling about that what are the elements. And see, the combination of elements, some properties are the same common in compound and element, that is that both are pure substances. किसी भी तरह की मिलावट की कोई भी गुंजाइश नहीं होती है, they are the pure substances of matter and has a chemical formula. अगर मैं ऑक्सीजन एलिमेंट की बात करती हूँ, तो ऑक्सीजन जो है O2, whenever we write in chemical way, ऑक्सीजन को हम O2 लिखते हैं, ठीक है, वो दो ऑक्सीजन एक साथ ज्वाइन होते हैं, तो इनके दोनों के फॉर्मूला, हाइड्रोजन की बात करेंगे तो H2 we will write, तो उसी तरह से कंपाउंड का भी फॉर्मूला होता है, जस्ट लाइक वाटर, H2O, सोडियम क्लोराइड, NaCl, ये सब सिंबल्स मैं आपको मेरे आगे वाले वीडियोस में बहुत अच्छे से बता रही हूँ। We will do the depth study about the compounds and the element symbols, okay? So formula is made up of atoms. तो इनका एक स्पेसिफिक फॉर्मूला होता है एलिमेंट्स का और कंपाउंड्स का, दोनों प्योर चीजें, प्योर सब्सटेंसेस आर देयर, और इनका एक फिक्स्ड फॉर्मूला होता है। Now compounds contains more than one. What are the differences? डिफरेंसेस ये है कि कंपाउंड एक ही एटम से नहीं बनता है, ये दो या दो से ज्यादा से, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ एटम्स, उससे से आपका कंपाउंड बनता है एंड हैज ए डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम द अदर एलिमेंट्स। जस्ट सी, वी आर टेकिंग ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, और ये जो H2 मॉलिक्यूल्स है जिसमें भी ऑक्सीजन है, इसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। वी कांट ब्रीथ दिस H2 मॉलिक्यूल्स, सो ऑक्सीजन इसमें भी है, ऑक्सीजन इज इन एटमॉस्फेयर आल्सो, बट द प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट फ्रॉम द एलिमेंट्स और other
elements. Okay, so these are the basic difference and the similarities between an element and a compound. So difference between elements and compounds, as I've already we have discussed, consists of only one kind of atoms, and compounds have more than one kinds of atoms. Compounds में हमेशा एक से ज़्यादा ही atoms होंगे, एक atom से compound नहीं बनता है, that is the element only. We cannot divide element into two or more simple substances by physical or chemical method. If gold is there, तो gold के atoms को हम किसी भी तरह से physically, chemically किसी भी तरह से हम उसको divide नहीं कर सकते. That is the basic feature of elements. And we can divide compound into elements by chemical means. Chemically हम लोग इनको divide कर सकते हैं compounds को, but elements को हम ये नहीं कर सकते. Third one, there are 118 types of elements known to mankind. हमें सिर्फ इतने ही elements के बारे में पता है, and there are many more to be discovered. There is no upper limit on the type of the compounds that can be formed. इनकी कोई लिमिट नहीं होती. कंपाउंड्स हम केमिकली किसी भी तरह से बना सकते हैं, इनकी केमिकल बॉन्डिंग होती है, एंड दे कैन बी जस्ट सिंथेसाइज्ड इन द लैबोरेटरीज एंड ऑल. So that's all for now. We will come with our new video. Till then, stay tuned and take good care of yourself. Bye bye.